Thank you so much, sir, that you introduced me like this. And happy morning to everyone. And good morning, sir. I'm very super duper. I'm super happy now because I don't know, my cheeks are paining a lot because while which time I came here, from that time I'm laughing only. I'm laughing, smiling because that is my nature. That always I smile this kind of. And thanks to you came all, and also seniors that you came, you joined here. And now meet to Miss Kanchan Sahu, Urf Miss Gold. I hope you are mostly who watched your all WhatsApp group. You will see there the Miss Gold. So I am a Miss Gold from Champa, Lashanpur. And I'm glad to hear that sir introduced me first time, because always sir neglected me that you don't need to any uni intro, you will give by your own self. But I'm so happy. And if you will say that what I am doing nowadays, so I am doing just I'm preparing myself as a good anchor in a life, in my future. And that thing I got in our Grand Odyssey. Actually I began to manage the Grand Odyssey. I hold the mic that day, so I found myself that yes, I can do also this thing. It is also a good thing which give me more happiness. So I'm just preparing for this. I heard you all that you are doing your best, and it is really good because you are doing mistake, you are just pushing yourself, and you all in your good way. So that is good for you all, and congratulations that you have joined our DC Education, and you will be fabulous, you will do fabulous in your journey, so in your future. So thank you so much to join our DC Education. Tell me the synonyms of mehnat in English. Hard work. If I will remove the hard work, so just tell me 2 words now. Hard work. Effort. Effort. Trying. Struggle, which you all are doing now in your life, and Okay. I'm doing. Okay. So if I will say about the mehnat word, we do in every second, in every moment, in every minute hard work in our life. It doesn't matter that our opinion is opinion is पॉजिटिव और नेगेटिव, बट वी डू मेहनत इन एवरी सेकंड. जैसे कि हम देखा जाए तो हम मेहनत हर एक पल में करते हैं, चाहे वो हमको अच्छा करने के लिए हो या गलत करने के लिए. ठीक है, जैसे सपोज यहाँ पर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो आज अटेंड नहीं किए होंगे, तो आप ऐसे हैं जिन्होंने मेहनत किया कि हाँ आज मुझे क्या करना है, स्पीकिंग करना है. और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने मेहनत किया कि कैसे मैं बहाना बनाऊँ. एम राइट? मेहनत आपको दोनों तरफ करना पड़ेगा, बट यू आर अ क्रिएटर ऑफ योर माइंड, यू आर दैट पर्सन हु कैन चेंज योर माइंड. ओके, एक होता है ना कि मन के बहकावे में ना मन को अपना दास बना ले. ठीक है, तो आप वहाँ पर अपने आप को क्रिएट कर सकते हो, अपने माइंड को समझा सकते हो कि अगर मैं मेहनत तो कर ही रहा हूँ, ठीक है, तो वो मेहनत मुझे अच्छे ढंग से करना है या बुरे ढंग से. ठीक है, तो जब भी आपका माइंड आपको बोलता है दैट नो आई शुड नॉट गो देयर, आई शुड नॉट डू हार्ड वर्क बिकॉज आवर बॉडी इज वेरी लेजी, और माइंड नेवर वांट टू डू एनीथिंग बेटर फॉर अस. वी आर दैट पर्सन, वी आल्सो ऑलवेज पुश अवर सेल्फ. एम आई राइट? हमेशा ऐसा होता है कि हमारा माइंड कभी नहीं बोलता कि भाई चल काम कर. कोई बोलेगा क्या? मेरा भी माइंड नहीं बोला होगा कि मुझे वहाँ चांपा से यहाँ आने के लिए. वो तो मैं खुद चाहिए हूँ, तब मैं हूँ. एंड नाउ ठीक है, तो वो मैंने अपने माइंड को खुद से पुशअप किया कि मुझे यहाँ जाना चाहिए. ठीक है, तो आपको वहाँ पर सोचना पड़ेगा कि हाँ मुझे कौन से जो वे है उसको डिसाइड करना है कि मुझे कौन से वे में आपको स्ट्रगल करना है या हार्ड वर्क करना है. क्योंकि देखो जनरली अगर आप किसी भी वर्क को आप करना स्टार्ट करते हो, आपका माइंड जो है हमेशा हाथ आपके चलते रहते हैं. होता है ना विक्रम वेताल, तो यू आर विक्रम, एंड आपका जो माइंड है वो है आपका वेताल की तरह. पॉजिटिव होता है, वो हमेशा बोलता है कि आपको जाना चाहिए, सीखना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ गुड फॉर योर फ्यूचर. और जो आपका नेगेटिव होता है वो हमेशा बोलता है कि आपको मत कर. ठीक है, तो वहाँ पर कुछ सेकेंड आपका जो माइंड है आपको वो टाइम देता है कि आपको डिसाइड करना रहता है कि हाँ आपको वहाँ पर क्या करना है. तो दैट इज़ अ पीक मोमेंट ऑफ योर लाइफ. Okay, so you have to decide at that time in a second, in a mini second, that हाँ मुझे ये चीज़ करना है. And if you can achieve that second, you can just convert in your favor. So you are going your future very well. You will just see your future
वेरी फैबुलस गॉर्जियस लाइक व्हाट डू यू वांट, ठीक है। तो आपको उसी समय में अपने आप को सोचना पड़ेगा कि मुझे अच्छा करना है। और ऐसा नहीं कि आपको लाइफ मौका नहीं देता है, वो हर किसी को देता है, बट हम ऐसे होते हैं जो उस चीज़ को नहीं समझ पाते, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से इसको थोड़े से ध्यान में रखते हुए अपनी लाइफ को आपको अपने आप को, क्योंकि यू ऑल आर वेरी अडल्ट, यू कैन जस्ट थिंक विच इज़ अ नेगेटिव पॉजिटिव फॉर योर लाइफ, ओके। तो आप अपने आप को समझाइए, क्योंकि आप sir is here, okay, and all seniors are here, they will come, they will go, they will explain you, but you have to understand that which is a good for us। आपको वहाँ पर ऐसा तो नहीं कि हाँ हम लोग 100 शब्द बोले तो आपको 100 शब्द अच्छा लगेगा या 100 शब्द आपको याद रहेगा। आपको कुछ पॉइंट्स ऐसा याद रहेगा जिसको आप लेकर अपने लाइफ में चल सकते हैं। तो वो पॉइंट्स आपको खुद से पिकअप करना पड़ेगा, ठीक है। जो कि अपने आप को, जब तक आप अपने आप को बात नहीं करेंगे अपने सेल्फ से, इवन जस्ट गिव 10 to 15 मिनट्स टू यूर सेल्फ इन अ होल डे। आपको दिन भर में कभी ना कभी 10 मिनट अपने आप को देना चाहिए। आपको वहाँ पर सोचना चाहिए कि मैं कब किस सिचुएशन में गलत कर रहा हूँ या मुझे क्या चीज़ में इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। इट्स गुड फॉर टू प्रियंका, शी सेड दैट जस्ट आई थॉट माई सेल्फ एंड आई बिगेन टू इम्प्रूव माई सेल्फ एंड नाउ शी गॉट इम्प्रूवमेंट इन हर लाइफ, ओके। तो उनसे भी आप ये चीज़ सीख सकते हैं कि हाँ मुझे भी क्या करना है। क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं कि हर कोई के लाइफ में हर एक टेंशन हो। आपको पता ही होगा कि जो परेशानियाँ होती है वो सबके लाइफ में होती है, बस परेशानियाँ हमेशा अपना रूप बदलती है। तो आज आप सोचेंगे कि हाँ रे आज मेरे पास टाइम नहीं, या मैं कॉलेज कर रहा हूँ या मैं स्कूल में हूँ, तो मैं कैसे करूँ या किस तरह से करूँ, टाइम कैसे मैनेजमेंट करूँ। तो ये आपके लाइफ में हमेशा रहेगी। यू आर जस्ट मेकिंग एक्यूजेस इन योर लाइफ। तो आपको चीज़ें छोड़ना पड़ेगा, अपने आप को सोचना पड़ेगा, उस चीज़ को अपने आप को पुशअप करना पड़ेगा, ठीक है। एंड जब भी सर आपको कॉल करते हैं यहाँ पर स्पीकिंग में आने के लिए, यू ऑल आर वेरी फॉर्चुनेट रियली। मैं बहुत अच्छा लगता है मुझे कि आप सभी को मैं यहाँ पर बोलते सुनती हूँ, ठीक है। लास्ट टाइम जब हमारा ब्रांच है सिवनी में, वहाँ जब फर्स्ट स्टूडेंट थी, शी वाज अ याचना, व्हेन शी बिगेन टू स्पीक फर्स्ट टाइम एंड आई सा हर, सो आई बिगेन टू क्राई एट दैट टाइम बिकॉज आई कुड नॉट गेट दैट अपॉर्चुनिटी इन माई लाइफ कि मैं भी जाकर किसी के सामने बोलूँ या मेरा जो डर है या हेजिटेशन है उसको मैं हटाऊँ। तो मुझे वो पल बड़ा अच्छा लगता था। एंड आप सभी के जीवन में बोला जाए तो वो है, वो पल है, तो प्लीज़ आप उस चीज़ को जिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा आपको प्लेटफॉर्म मिला है यहाँ पर कि आप अपने डर को, चाहे वो हंस कर, ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पर एकदम सीनियरिटी रहना पड़ेगा, एकदम प्रोफेशनल कि हाँ मुझे बोलना है मतलब बोलना है। आप यहाँ पर आगे हंस भी सकते हैं, गाना भी गा सकते हैं, विच आई विल डू everything you can do here. Even you can insult yourself, you can insult to sir also. That is a big, that opportunity where you will give that thing कि आप सर कभी यहाँ पर खड़े खड़े बेइज्जती कर सकते हो। आप सोच सकते हैं कि सर भी आपको कुछ नहीं बोल सकते, बिकॉज ही विल बी हैप्पी दैट एटलीस्ट मेरा स्टूडेंट कुछ बोले, लेकिन इंग्लिश में बेइज्जती तो कर रहा है, सीख तो रहा है, ऐसा होता है ना माइंड में। तो वो चीज़ सर को भी प्राइडफुली होगा, भले बेइज्जती सही लेकिन सर तो लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो डालेगा तो मज़ा आएगा, ठीक है। तो वो चीज़ होता है। तो ये अच्छा, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो आप चाहो तो हंसी, रोकर, गा कर, जिस तरह से आपका जो डर है उसको आप हटाइए, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है आपका यहाँ पर स्पीकिंग में देखा जाए कि आपको सबसे पहले आपका जो डर है, जो हेजिटेशन है, उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा। और जितना जल्दी हो सके विद इन 1 and 2 वीक ये चीज़ आप जल्दी से जल्दी कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही आपको ग्रामर बहुत सारा सिलेबस प्रोवाइड होगा, ठीक है, आपको एक अलग काम मिलेगा जिसमें आपको रहेगा सेंटेंस ज़्यादा से ज़्यादा बनाना, प्रैक्टिस करना रहेगा, या तो आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो एक होता है ना कि हाँ पहले का जो बर्डन है वो आपका कम हो, फिर दूसरा बर्डन आपको मिलते जाएगा, तब वहाँ पर आपको रिलैक्स महसूस होगा, वो तो चीज़ मेरा ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, तो मुझे अब न्यू थिंग मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस रहेगा। तो आप लोग बहुत अच्छे प्रोसेस में जा रहे हो, मैंने आप सभी को देखा। How did you learn English speaking that time? How many years have completed to learn? So explain to them. Okay, if you will say that I have learned English, so no, just I'm learning. Even I'm learning because there is no ending point of English word. If अगर बोला जाए, देखा जाए तो मैंने कैसे सीखा, so when I just imagine that phase that how I did, so मुझे भी हंसी लगता है कि मैंने ये चीज़ कैसे कर लिया, क्योंकि ये मतलब देखा जाए तो बहुत ज़्यादा सरल नहीं है कि आप एक सेटिंग से सीखना, ठीक है, जिसमें कैसा होता है ना, हूँ भी लिखते हैं SMM, तो उसका मतलब हमको समझ आता है कि हाँ वो लिखा है कि क्या, मतलब एक होता है ना, मैं बोलूँ कि आप कल जाएंगे क्या, ठीक है, कहीं जाने के लिए बोलूँ तो आप हूँ लिखोगे, तो मैं वहाँ पर ये भी सोच सकती हूँ कि इसने अग्री भी किया है, और मैं ये भी सोच सकती हूँ कि आपने नेग्लेक्ट भी किया है, ठीक है। तो हमको चैटिंग में सबसे पहली बात होती है कि हमको मीनिंग समझ में आता, सामने वाला की इमोशन कि वो क्या बोल रहा है, ठीक है। फिर भी मैंने उस पॉइंट्स को अपने आप में किया
क्योंकि मुझे रियली एट द टाइम आई वांटेड टू लर्न इट एनी हाउ एंड आई गॉट एवरीथिंग बिकॉज जस्ट आई फॉलो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन विच इज़ गुड फॉर यू ऑल। आप जितना हो सके अपने बारे में अच्छा सोचिए, जितना हो सके आप अपने आसपास का जो माहौल है उसको पॉजिटिव बना के रखिए। बिकॉज देखिए हम लोग जैसे बोलते हैं कि ट्रेन है हमारा, मैं लेट मत हो जाऊँ, मैं लेट मत हो जाऊँ, ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि मैं लेट मत हो जाऊँ, बट यूनिवर्स ऐसा बोलता है कि वो तो नहीं वर्ड को हमेशा साइलेंट रखता है, ठीक है, वो उसको म्यूट कर देता है कि, लेकिन आप लोग अब क्या बोल रहे हैं, मैं लेट मत हूँ, तो मत को साइलेंट कीजिए। आप क्या बोल रहे हैं, आप मैं लेट हो, ठीक है, तो यूनिवर्स आपको क्या करेगा, लेट करेगा। दैट्स वाई इन एवरी सिचुएशन यू हैव टू यूज़ बाय योर माउथ टंग पॉजिटिव सेंटेंस, जैसे कि मैं जल्दी पहुंच जाऊं, मैं जाऊंगा तो वहाँ पर सर अच्छे से बैठे रहेंगे, ठीक, क्लास जो है सब लोग अभी पहुँचे होंगे, मैं भी पहुँच ही जाऊँगी, ऐसा, ठीक है। तो ऐसा कुछ पॉजिटिव सेंटेंस भी आप बोल सकते हैं आपके लाइफ में, और इसको एक बार ट्राई ज़रूर करना, बहुत अच्छे से फॉलो होता है। Okay, tell us, actually tell me that in which mobile were you using while studying? Okay, just before some time I said that always I follow the law of attraction, okay? So ये मेरे लाइफ में बहुत अच्छा, मैं एक तरह से एग्जांपल बोल सकती हूँ कि जब मैं इंग्लिश ऐसे इन हिंदी और इंग्लिश, ओके, तो जब मैं इंग्लिश सीख रही थी, ठीक है, तब मेरे पास था संचार क्रांति फ़ोन, जो कि हमारे सभी छत्तीसगढ़ में बांटा गया था, ठीक है, जो तो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। उस संचार क्रांति ने बहुत लोगों का लाइफ भी, जैसे हमारी मम्मी बोलते हैं कि हाँ वो फ़ोन ला दे के उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दे, ऐसे बोलते हैं, तो वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था देखा जाए तो मेरे लाइफ में, ठीक है। एट द टाइम आई वॉज जस्ट आई हैड पास्ड माई 12th क्लास, तो जब वो फ़ोन मुझे मिला मेरी मम्मी से, तब उस टाइम ऐसा था कि जनरली किसी को ज़्यादा फ़ोन नहीं दिया जाता, चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स, ऐसा होता था, क्योंकि वो बिफोर 6 ईयर एगो, तो वो फ़ोन जब मिला मेरे घर में, तब मेरे और मेरे भैया के बीच में इतना लड़ाई हुआ कि उस फ़ोन को वो लेगा कि मैं लूँगी, ठीक है। सोचो संचार क्रांति फ़ोन के लिए इतना लड़ाई होता था हमारे। फिर हम लोगों ने एक टाइम डिसाइड किया कि इतने टाइम में तू यूज़ करेगा और इतने टाइम में मैं यूज़ करूँगी, ठीक है। तो मैं उसको दिन भर दे देती थी, जा तू यूज़ कर, लेकिन रात को मुझे दे देना। लेकिन ऐसा था संचार क्रांति फ़ोन में एक प्रॉब्लम थी कि वो बैटरी नहीं टिकता था उसका, और मैं बड़ा परेशान। एट द टाइम आई ब्रॉट अ सेकेंड बैटरी, यू नो, तो ऐसा होता था कि जो कौवा चार्जर होता है उसमें जब तक वो फ़ोन को चला रहे हैं ना, तब तक मैं उस फ़ोन को उसमें बैटरी चार्ज करती थी। जैसे उसने उस फ़ोन को दिया ना, उसको फिर से चेंज करती थी मैं, और फिर एकदम 100% चार्ज, समझ रहे हो, तब फिर मेरा चालू होता था स्टडी। देन actually if we see the difference between now and that time, हाँ, so there is आसमान और धरती आसमान का फर्क पड़ा है। हाँ, Now you have you all have mobile, smartphones, okay? Yes. But this is only for Free Fire and Reels, Instagram, and story. Actually, I watch story, every story, but I learn many things from there. हाँ. If somebody, मान के चलो किसी को पुस्तक चाहिए, for example, 1 minute, let me say something. I need a BA first year book. ठीक है, मुझे चाहिए BA फर्स्ट ईयर का बुक, और मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट है 200, ठीक है, मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट कितने हैं 200, जस्ट थी ना 200 कॉन्टेक्ट लिस्ट, जिसमें से मेरे कॉलेज के स्टूडेंट कितने हैं 50, मेरे कॉलेज के दोस्त कितने हैं 50, और मुझे चाहिए क्या चाहिए, बुक, BA फर्स्ट ईयर का बुक चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि स्टेटस डालूंगा कि किसी के पास BA का पुस्तक होगा तो मुझे प्लीज़ प्रोवाइड करें, मुझे 2 दिन के अंदर चाहिए। कितना दिन करना चाहिए, 2 दिन के अंदर। और स्टोरी कितना घंटा रहता है, 24 घंटे। स्टोरी डाल दी है कि प्लीज़ मुझे ये पुस्तक चाहिए, कोई देंगे तो बताएंगे, ऐसा होता है। और 50 में से आगे 10 लोग ऑनलाइन और 40 लोग नहीं आए, और जो अब 40 लोग नहीं है, 50 स्टूडेंट हैं, टोटल कॉन्टेक्ट कितने हैं 200, जिसमें से 10 ऑनलाइन आके स्टेटस देखे और 40 का 40 नहीं देखे, जिनके पास ऑलरेडी कॉपी था। हाँ। तो कॉपी मिल पाया क्या आपको, नहीं मिल पाया, तो हम डायरेक्ट उसको मैसेज तो कर सकते हैं ना, व्हाई डू यू अपलोड, क्यों अपलोड करते हैं ऐसा, बिकॉज दे वांट टू शो इन अदर पीपल, वो दूसरों को शो करना चाहते हैं। मैं ऐसा बहुत देखा हूँ, कोई रायपुर जाएंगे तो बताएंगे भैया ट्रेन की छुट्टी तक तो रायपुर आदमी पहुँच जाएगा, अरे जाने से पहले कोई रायपुर जाएंगे तो बताएंगे, मैं प्लास रायपुर पहुँच के देख रहा हूँ तो स्टेटस दिख रहा है, और मैं तो आज ही आया हूँ रायपुर। तो इसी को अगर मेरे को मैसेज कर देता ग्रुप में कि कोई रायपुर जाएंगे तो बताएंगे,
तो मैं तुरंत नहीं बोलता फोन लगा के कि हाँ भाई मैं रायपुर जा रहा हूँ, तो नहीं स्टेटस डाल रहे हैं, फिर रायपुर जाएंगे तो बताएंगे मैं रायपुर बस के बोल रहा हूँ, क्या रे स्टोरी डाल रहा है, तो अपॉर्चुनिटीज को खोया नहीं खोया, मेरा सिद्धांत है। वहाँ तक भी तो सही है, लेकिन वो डालते हैं आई एम गोइंग टू रायपुर, आई एम गोइंग टू बिलासपुर, ठीक है, अब बीच में कोई किडनैपर मिल गया आपके इन्फॉर्मेशन जिसके हो completed the your goal, हाँ, just tell the people, you should inform the people. Just for example, tomorrow 5 September, October your exam, 5 October your exam, and today you are uploading that I am going for exam session. Yes. She is uploading in morning and she is going to Jangir, and some boys are following her. हाँ। अरे कोई पीछा कर रहे हैं उनको तो पहुंच जाएंगे ना तो कुछ चीज़ों को प्राइवेसी रखो। हाँ ओके कंटिन्यू। ओके सो आई वॉज इन क्या फ़ोन, संचार क्रांति फ़ोन, ठीक है, और अभी भी वो फ़ोन मेरे पास है। अब जाएंगे मेरे घर तो आपको कहीं ज़रूर बताऊंगी, लेकर भी आऊँगी, बट इट इज़ नॉट एबल टू रन। ओके देन सडनली माई ब्रदर परचेज्ड iPhone 6 at that time, but directly I attract that I need this phone, and within 1 week I got that phone. So I was very happy that तब मुझे समझ आया कि हाँ अगर मैं संचार क्रांति से डायरेक्ट मैं किस में आ सकती हूँ, iPhone में आ सकती हूँ, so I can change everything. Then I got बहुत कुछ मुझे मिला मेरी लाइफ में, बहुत कुछ, हर एक चीज़ बोला जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड ड्यू टू सर दैट ही ऑलवेज सपोर्टेड मी इन एवरी सिचुएशन. If I will say about job, study and whatever I am today, so everything that due to only law of attraction and due to sir. So thank you sir once again, and thanks to universe to give me this kind of life. Always I say thank to my universe that you given me this kind of life. आप हमेशा ना किसी के शुक्रगुजार मत रहिए, लेकिन हमेशा शुक्रगुजार रहिए तो आप रहो ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का कि उन्होंने आपको इस तरह से लाइफ दिया है, क्योंकि आप सच में बहुत लकी हो जैसे भी हो, बट आपके में है वो कैपेसिटी कि आप वो चीज़ों को कर सकते हो. ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है. मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, क्योंकि आजकल मैं कुछ लिखती भी हूँ, तो परसों रात को मैं लिख रही थी ये चीज़ें कि कुछ कर्मों को सोचना पड़ता है, कि कर्मों को सोचना पड़ता है, कुछ हालातों को रोकना पड़ता है. यूँ तो आएंगी लाख मुश्किलें ज़िंदगी में, यूँ तो आएंगी लाख मुश्किलें ज़िंदगी में, मगर उन सब से सिर्फ मुस्कुरा के गुजरना है. थैंक यू सो मच. रात को सबसे बेस्ट मोमेंट होता है, रात को अपने आप को टाइम देना. बहुत अच्छे अच्छे विचार जो होते हैं हमारे मन में आती है, तो आप ज़रूर एक बार अपने आप को सोने से पहले 10 मिनट का टाइम ज़रूर दें, और उस टाइम में आपको समझ में आता है कि व्हाट इज़ इनसाइड मी. ठीक है, कि मेरे अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो हमको बहुत अच्छे से समझ में आता है. तो उस टाइम को आप बिल्कुल भी लॉस मत कीजिएगा किसी को चैटिंग करके, किसी को बात करके. ठीक है, भले आप 12 बजे तक जगते हैं, लेकिन सोने के पहले 10 मिनट छोड़ दो, गुड नाइट बोल दो. भाई जितना भी बात करना था कर लिए, अब 10 मिनट अपने लिए निकालो. ठीक है, सोचो वहाँ पर कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्या करना है मुझे, क्यों करना है मुझे. आपका हमेशा जो विज़न है ना, क्यों, कब, कहाँ और कैसे, ठीक है, ये चीज़ें हमेशा क्लियर रखना. देन यू विल बी गो स्ट्रेट इन योर लाइफ. ठीक है, हमेशा सीधा जाओगे आप अपने टारगेट की तरफ, और उसको बहुत जल्दी आप अचीव करोगे. तो दैट वाज माय स्टोरी एंड व्हाट्स व्हाट आई से. एंड कभी भी आप लोग सोचते हैं, मैं एक चीज़ आप सभी ने देखी कि सर मुझे नहीं पता, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा बोलते हैं आप लोग. ठीक है, मतलब मैं क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, तो आप उस चीज़ को छोड़ दीजिए, क्योंकि आप सभी जो है यहाँ पर समान हो, कि वो हैं जितने भी आप स्टूडेंट हैं. ठीक है, तो क्या उनको पता है इंग्लिश के बारे में? नहीं ना, दैट्स वाई आप सभी यहाँ हो. ठीक है, आप लोग को सीखना है, तो आप लोग बिल्कुल शर्माइए मत. और मुझे तो नहीं लगा कि आप लोग बिल्कुल एक दूसरे से शर्माते हो, क्योंकि बहुत अच्छा कनेक्ट हो चुके हो आप लोग. फर्स्ट बैच में जनरली ऐसा होता था कि 2 बैचेस लगती थी, तो हम लोग वो दोनों को ना ज्वाइन करने के लिए ओडीसी लेकर जाते थे, ताकि सबके बीच में क्या हो जाए, सब फ्रेंडली हो जाए. लेकिन ऑलरेडी आप लोग फ्रेंडली हो चुके हैं, मैंने स्टार्टिंग से ही देखा वहाँ पर मैं आई तो. ठीक है, आई नोटिस एवरीथिंग. आप लोग को लगता होगा कि मैं आई हूँ तब से हंस रही हूँ, मैं हंसती नहीं हूँ, हंसती तो हूँ, दैट इज़ माई नेचर. लेकिन मैं बहुत चीज़ें अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करने को, कौन लोग किस चीज़ से कर रहे हैं. ठीक है, तो आपके लाइफ में एक चीज़ अच्छा हो चुका है कि आप लोग फ्रेंडली हो चुके हो. अब आपको क्या करना है, उस डर को आप, भाई क्यों शर्माना, दोस्तों किसी कोई शर्माता है क्या? नहीं. ठीक है,
वो घर में आप शर्मा सकते हो, लेकिन आप दोस्तों के साथ नहीं शर्मा सकते। तो जितना भी गलती हो सकता है, जितना भी गलत हो सकता है, आप यही कर लो, क्योंकि हमारे एक होता है ना गलती से मिस्टेक, जो कि हम आपके लिए सुधार के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। जिसकी सपोज आपको नॉलेज है, अब ये चीज़ आप बोलोगे घर में मैं गलती कर लूँगा, यहाँ पर नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो घर में आपको कोई एक्सप्लेन करने वाला रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो यहाँ पर है आपको कोई जो आपके ग्रामर को, जो आपके वर्ड्स को करेक्ट कर सकता है, तो आपको यही करना पड़ेगा, ठीक है। तो एकदम फ्रेंडली हो जाओ, बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि अभी आपका 3 मंथ बचा हुआ है देखा जाए तो ग्रैंड मतलब DC एजुकेशन में, जो कि बहुत ही आपके लिए इम्पैक्ट करेगा आपके लाइफ को, ओके। तो बिल्कुल डरिए मत, बिल्कुल संकोची मत बनिए, सोचो, अच्छा सोचो, जितना ज़्यादा हो सकता है। आप जो नहीं हो ना आपके लाइफ में, बस